Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 4. The chapter which we are related with is consignment account. As usual, we have a question where there would be some old entries we will be doing in our question and some new concepts will be included. क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन एंट्रीज वही हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 5 to 6 entries we have designed in our introductory lecture, and you will see that only those 4-5 entries will be used. हाँ, concept में अगर प्लस माइनस होगा तो वो हर क्वेश्चन के लिए जरूरी है. अगर एक जैसे क्वेश्चन होंगे तो you will not be able to practice well. So this was brief introduction about the question. Let's start. Cream and company sent, इसका मतलब है the first target is to see who is our consigner. वो हमें मिल गया है. And here we have recognized Kareem as consigner. और यहाँ पे ये चेक कीजिए, this is very important, journal entries and consignment account in books of Kareem. अभी तक आपने ये सीखा है कि how to journalize in books of consigner. ध्यान रखना है पेपर में यहाँ पे consigner का नाम लिखा होना चाहिए. So Kareem and company sent consignment to Salman. Salman is your consignee. एहतियातन हम consignee के अकाउंट में लिख देते हैं. Although it is not required in this question, consignee and the name of consignee is mentioned as Salman. याद रखने के लिए 60 cases of cutlery costing 350 per case. So first entry we have found out. This is for goods sent on consignment. पूरा ही वैसे लिखना चाहिए. So first step is consignment to. अब city name, look, first time in our question city name is mentioned, Salman of Lahore. So consignment to Lahore, this is our first step, and then goods sent on consignment. How much amount, isko bhi you will have to calculate. Look, how many number of units? 60, and cost of single case is 350. So 60 units, 350 is the cost. This way you will calculate amount of first entry. 60 क्या चीज है याद रखना है. These are cases, pack, units, और cost of each unit is 350. So guys, in this way our first entry is 21,000. नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर. अब ये तो क्लियर है कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं. सो यू कैन राइट कंसाइनर एक्सपेंसेस, और एंट्री के लिए वी आर टेकिंग एज यूजुअल कंसाइनमेंट ऑन डेबिट साइड. सो कंसाइनमेंट, एंड देन इफ इट इज एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर you will be writing cash account. How much consignor's expenses? Look, there are 3-4 type of expenses provided over here: freight, insurance, loading charges. I have already informed you, you are not required to write the names of expenses. Simple, what you will do, look, 550 was first expense, then add second expense which is 110, third, that is loading charges 40. So this way you have written amount of expenses. Again I'm telling you, you are not required to write down the name or the list of expense. Simple consignment to cash would be the entry, and you will add all expenses of consignor at the same time. आगे चलते हैं. Kareem and company draw on Salman Son's 2 months bill straight for rupees 40,000, which the later accepts. अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्टली ये वाली एंट्री हमारे से रिलेटेड नहीं है कंसाइनमेंट से, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ. बिल ड्रॉन, यहाँ पे एक बिल ड्रॉ किया. जरा मुझे समझाइए कि बिल अगर ड्रॉ किया होगा तो वुड इट बी फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द कंसाइनर. हम चूंकि कंसाइनर की बुक में कर रहे हैं तो कौन सा बिल होगा, रिसीवेबल या पेएबल. यहाँ कह रहा है क्रीम ड्रॉस, तो ऑब्वियसली यू विल बी having in your mind Kareem is consigner, he is the owner of the person, he will be receiving amount from consignee. So here which type of bill you are going to draw? Bill
रिसीवेबल एसेट होता है इसलिए डेबिट साइड पे, और किससे लेना है? कंसाइनी से, और कंसाइनी का नाम वी हैव डिसाइडेड इज सलमान। अब मैं क्यों कह रहा था कि दिस एंट्री इज नॉट रिलेटेड, बिकॉज कंसाइनमेंट, द वर्ड कंसाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर लेजर यू आर डायरेक्टली रिलेटेड विद कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट यहाँ आया नहीं, दैट इज वाई इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में इंक्लूड जो भी चीज होगी उसे आप लिखेंगे जरूर। सो बिल रिसीवेबल हाउ मच अमाउंट, वो कह रहे जी 14,000 इज द अमाउंट ऑफ योर बिल। आगे चलते हैं। Which the later accept the charges paid by Salman. Who is Salman? Consignee. तो हमें next hint भी मिल गया. He is talking about expenses of consignee. Spelling okay, ठीक करने को दिल नहीं करता कभी कभी, लेकिन this is important. So expenses of consignee. यहाँ again अनलोडिंग चार्जेस अलहदा हैं, स्टोरेज अलहदा है, इंश्योरेंस अलहदा है, कमीशन अलहदा है। तो आपने सिंपल एंट्री तो वही करनी है, लेकिन लिस्ट नहीं बनानी। यहां पर भी वही काम कर रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी यहां पर लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर एज वेल। ऊपर टू का वर्ड नहीं लिखा हुआ था, अब आपने टू का वर्ड ऊपर भी लिख दें। ऑलराइट, अब एक्सपेंसेस काउंट करने हैं और लिस्ट नहीं बनानी। द चार्जेस पेड बाय सलमान अनलोडिंग के 60 हैं। चलिए, उसके बाद 170, उसके बाद इंश्योरेंस के 30। सो दीज आर थ्री एक्सपेंसेस, 60, 170 और 30। इस तरह से आपके पास एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी आ गया। आगे चलते हैं। कमीशन इज पेएबल टू सलमान 2% ऑन ऑल सेल्स, इन एडिशन 1.5% ऑन डेल क्रेडिट कमीशन। अच्छा, ये एक नया वर्ड आया है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? नॉर्मली कंसाइनी विल नेवर बी सेलिंग कमोडिटीज ऑन क्रेडिट। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट हिज बिजनेस। If he is selling these commodities on credit, and expectation of bad debts will always be there if it is credit transaction, so whole burden would be upon consignee. That is why consignee will not be ready to sell on credit. Consignee डरता है कि वो उधार चीजें ना बेचे, क्योंकि उधार बेचेगा और बैड डेट्स होंगे तो बैड डेट्स का सारा बर्डन कंसाइनी पे आ जाएगा, तो वो बेचता ही नहीं है। अब उसको लालच देने के लिए कंसाइनर हैड प्लेड अ गेम। उसको ऑफर करता है कि रूटीन में आई एम पेइंग यू 2% कमीशन, बट इफ यू विल सेल कमोडिटीज ऑन क्रेडिट, दिस डेल क्रेडिट इज क्रेडिट सेल्स, जस्ट कंसिडर इट। तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 1.5% कमीशन वुड बी प्रोवाइडेड टू कंसाइनी। वो इस लालच में आके उधार भी बेचना शुरू कर देता है। अब आपने याद रखना है कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे दी और बैड डेट्स हुए तो फिर कंसाइनी की जिम्मेदारी है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंसाइनर एंड देयर आर बैड डेट्स, वो फिर कंसाइनर की जिम्मेदारी है। अब जब हम डिस्कस करेंगे ना, आपने बड़े ध्यान से इसको याद करके आना है अच्छे तरीके से। क्या बोला है मैंने? इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन देन कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन देन कंसाइनर हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स। बहरहाल हमें आज के कंसर्न में यह है कि 2% और 1.5% कितना हो गया टोटल? 3.5% की कमीशन है। आप सोच रहे होंगे इतनी डिस्कशन की है लेकिन एंट्री फिर वही, किसकी? कमीशन ऑफ कंसाइनी की एंट्री। और वो क्या करते हैं? सेम कंसाइनमेंट टू कंसाइनी would be your entry. Now here we will be charging its commission. पहले हम इसे नोट कर लेते हैं so that you can remember. आप चाहे तो यहाँ नोट करें, चाहे वर्किंग में नीचे नोट कर लीजिए। उसके लिए आपको दो तरह की कमीशन दे रही है, 2% एंड 1.5%। तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? 3.5, दोनों को जमा कर दिया, डिवाइड करना है 100 पे, लेकिन चूंकि अभी सेल नहीं है तो आपको जब सेल मिल जाएगी तब आप ये कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सेल का इंतजार करते हैं।
कंसाइनी सेल्स ऑल द केसेस। अच्छा यहां आज आसान काम हो गया कि सारी कमोडिटीज बिक गई हैं, तो बताएं आसान क्यों हुआ। हो सकता है आप में से कुछ अच्छा आंसर दे दें। इफ ऑल कमोडिटीज आर सोल्ड आउट इट मींस वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग स्टॉक। ये देखें कल का मैंने लिख के रखा हुआ है, ये स्टॉक था पिछले क्वेश्चन का, लेकिन टुडे वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट स्टॉक बिकॉज all commodities, all cases are sold out. There is no unit unsold left by the consignee. Consignee के पास कोई unsold है नहीं, so you are not needed to calculate stock. सेल की एंट्री बहरहाल हमें मिल गई है और वो क्या होगी, आपको याद होना चाहिए, अकाउंट सेल्स की एंट्री करने लगे हैं, उसके लिए कंसाइनी और वो हमने सलमान तय किया और टू कंसाइनमेंट टू लाहौर। चलिए अब सेल कैसे करेंगे ये पढ़ें दोबारा से। ऑल केसेस 480, ऑल केसेस, हाउ मेनी केसेस वी वर हैविंग 350, और हर एक को उसने 480 के हिसाब से बेचा है। यहां देखिए कितने केसेस थे 60, टोटल नंबर ऑफ केसेस 60 और सारे के सारे बेच दिए 480 के हिसाब से। तो फिर एंट्री कैसे करेंगे, 60 केसेस ऑल सोल्ड फॉर 480 रुपीज। क्लियर होगी बात, दोबारा देखें, टोटल नंबर ऑफ केसेस 60 और सेल प्राइस ऑफ वन केस वाज 480। इस तरह से आपने सेल की एंट्री यहां पे कंप्लीट कर लेनी है। 60 केसेस वर सोल्ड फॉर 480 ईच। अब आपके पास सेल की प्राइस भी मिल गई, 480 के हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब स्टॉक कैलकुलेट नहीं करना और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। एहतियातन मैंने जो लास्ट एंट्री है वो ऑलरेडी कर दी हुई है, अब बीच में ये थोड़ी सी लाइंस खाली हैं, मेरे लिए तो आसान काम है। आई विल पिक दिस एंट्री एंड राइट ओवर हियर। आपने एहतियात से बस इस एंट्री को कर लेना है। अब मैं पहले क्यों लिखने को बोलता हूँ, बिकॉज डेफिनेटली देयर वुड बी अ चांस टू फॉरगेट about this entry because there is nothing mentioned about cost of consignment over here। तो आप ये एंट्री ना भूल जाएंगे, इसलिए आप पहले लिख लिया करें लास्ट में। अच्छा जी, कॉस्ट वही जो पहली एंट्री की 21,000 है, वही 21,000 आप यहां लिख देंगे। अगली बात ये कि आपने अभी कमीशन की अमाउंट निकालनी है, वो हमने यहाँ लिख के रखा हुआ है। अब कमीशन की अमाउंट के लिए 3.5% था, हमें सेल की अमाउंट मिल गई है। This is amount of sale 28800। This way you will calculate your commission। दोबारा देखें, you will have to take amount of sale which is 288,200 और 2% and 1.5%, collectively it would become 3.5 और परसेंटेज ले लेंगे। इस तरह से कमीशन की अमाउंट भी हमारे पास आ गई कैलकुलेट होके। अब उसका दूसरा मतलब है कि all entries from start to end we have completed, we are ready to start our consignment ledger। सबसे पहले 21,000 is present on debit side, अमाउंट पोस्ट करें और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको आपने पोस्ट कर दें यहां पर। अच्छा जी, फर्स्ट एंट्री इस तरह से आपने कंप्लीट कर ली। अब सेकेंड एंट्री को चेक करें, अगेन कंसाइनमेंट डेबिट साइड, हाउ मच अमाउंट 700 और इसके लिए ऑपोजिट साइड पे टू कैश लिखा हुआ है, तो आप टू कैश पोस्ट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री को चेक करें, बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी। अब सिंस वी आर मेकिंग कंसाइनमेंट अकाउंट and nothing is present in this entry, so you can skip. Next consignment is written on debit side, so 260 you are going to write on debit side, and what is written to the opposite side that is consignee, उसको भी आप पोस्ट कर दें। इस तरह से थर्ड एंट्री हैज बीन पोस्टेड। आगे चलें, नेक्स्ट अगेन कंसाइनमेंट डेबिट, so you are going to write 1008 on debit side, इसके लिए कंसाइनी ही ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब देखें, कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड,
तो सेल की एंट्री के लिए आप इधर आ जाएं। हाउ मच अमाउंट 288,200 and what is written on the opposite side, that would be written in reference column। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन अगर ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, और लास्ट एंट्री वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसका मतलब है कि वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर calculation for the balance। So as a first step you will be calculating sum of both sides। इस साइड का जैसे ही सम कैलकुलेट किया दूसरी साइड का भी सम। अब देखें विच साइड इज द लार्जर साइड। इसका मतलब इनकम साइड ज्यादा हो गई है, सो यू विल बी कैलकुलेटिंग ओवर हेयर। अगर इनकम ज्यादा है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लार्जर अमाउंट यू विल बी पिकिंग and subtract smaller amount, that is 22,968। so what we have got is our profit given in the book 5832 और जो हमने कैलकुलेट किया है that is also 5832। इसका मतलब है all entries, all calculations are perfect। लास्ट एंट्री में आपने प्रॉफिट मेंशन कर देना है, प्रॉफिट ऑन consignment, and here as usual consignment would be written on debit side। or since you have calculated profit तो यहां पर to profit on consignment लिख दें। और how much profit you have calculated, look at here 5832, वही आप यहां लिख दें and same amount you will be posting over here यानी कि 5832। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो लास्ट एंट्री होती है तो हमने पहले लिख दी। पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। एंड लेट्स से आपको पता है कि ये लास्ट एंट्री है तो आप पहले ही उसको बाद में लिखते हैं। ज्यादा ओवर बर्डनाइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि दिस एंट्री शुड बी प्लेस्ड एट द लास्ट मोमेंट। So guys, in this way you have seen your question. It was quite pleasant. I have really enjoyed by solving this question, just sharing my feeling. All right, so if you feel anything difficult, you are very open to share your problem through messages, text or comments. I will surely be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.